عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اس سے بولنے لگے. حسن بن ثابت نے کہا کہ عمر اللہ پر رحم کریں، میں مسجد میں شعر و شاعری کرتا اور آپ سے بہتر آدمی وہاں پر موجود ہوتے، یعنی اللہ کے رسول، اور انہوں نے مجھے روکا نہیں. آپ تو مجھے روک رہے ہیں. میں کہا کہ ہاں ایسا ہے، دلیل لاؤ. اگر دلیل نہیں لاؤ گے تو یہ جو میرا درہ ہے نا اس سے طے ہوگی. تو اس کے بعد پریشان ہوئے. حسن بن ثابت نے کہا کہ کسی یاد ہے بتاؤ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں شعر و شاعری کرتا تھا. تو ایک صاحب اٹھے، کہا کہ اللہ کے ہاں میں دیکھا ہوں، میں سنا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں شعر و شاعری کرتے ہیں. تو نے کہا تھا تو شعر و شاعری میں اللہ کی حمد و ثنا. ہاں، حمد میں کتنی بھی تعریف کرے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی تعریف چاہے کتنی بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں. جب نبی نعت میں آ کر شرک کیا، آپ نے شرک کیا. ابھی تو اب تک ہم لوگ سن رہے تھے کہ وہی جو ہم عرش پر اللہ بن کر تھے، زمین پر احمد بن کر آئے. اس کے علاوہ بھی یہ کچھ دن پہلے وہاں پر قوالی کی محفل چل رہی تھی میرے گھر سے ایک دم قریب، پوری رات بھر سونے کا موقع نہیں ملا. تو اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا والے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے، دنیا والے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محمد کا کلمہ پڑھتا ہے. یہ گزشتہ سال کی بات تھی. اس سال پھر اسی جگہ پر جب قوالی ہوئی تو اور ذرا آگے کہا کہ اسی شاعر و شاعری میں ایک شعر ایسا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خدا کی خدائی نہ ہوتی. کتنا بلو ہے. یہ لوگ ان کے شان میں شرک کرتے اور غلو کرتے ہیں. اور پورے قوالی آپ سن لیجئے، پورے قوالی کے محفل میں آپ بیٹھ جائیے، کتنے مرتبہ اللہ کے رسول کا نام آتا اور وہ لوگ درود نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے. پھر کہتے ہیں کہ زبانی یہ محبت کا دعویٰ دل میں کچھ نہیں. تو یہ جو شعر و شاعری اگر ہاں صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طاہر القادری صاحب کے بھی بڑے فیمس ہیں یوٹیوب پہ. ان کے ایک شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے کہ وہ شاید پنجابی جو دو کہے وہ مشرق ہے، اور پورے لوگ اس کی واہ واہی کرتے ہیں. مجھے وہ تعجب لگا کہ اتنا بڑا مجمع پاکستان میں، شاید پاکستان ہی تھا وہ، شاید پاکستان کا پنجاب، پاکستان میں تو پنجاب ہے نا. کیا شاید وہاں اور یہاں سے حالت خراب ہے. یہاں سے مربت میں سب آتے ہیں پاکستانی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے نا. پہلے بھی پاکستانی کوئی نہیں تھا وہاں کے اچھے مدارس ہیں. کیا وجہ ہے یہاں پر پاکستان میں بدعت و خرافات بھی ہے، اچھے اچھے علماء بھی ہیں، بہت سے بہت سالم بھی ہیں. جو لوگ ہیں نا بہت اچھے ہیں، اچھے اچھے مدارس بھی ہیں، اور بہت ایک تو وہ عجیب مکسچر ملک ہے. کیوں ایسے کیا تعلیم نہیں ہے بول کے، یعنی کیا ہے، غریب ہیں وہاں لوگ بولتے ہیں. غریب دیکھیے، پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پاکستان کے عوام غریب ہے اور وہاں کے جو رولر ہے بالکل صحیح. چیز یہ ہے ہر ایک کی پراپرٹی دیکھیے باہر ملک میں ہے، چاہے وہ مشرف ہو، زیادہ تر وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، وہیں پڑھ کے آتے ہیں. زبردست بڑی مالدار ہے وہ لوگ، عوام غریب ہے. عجیب وہاں کے سسٹم. مشرف بتایا میں 1000 لوگ صرف سرونٹس ہیں جب وہ منسٹر ہو گیا پاکستان میں. رحمان ملک کے بارے میں ایک شعر یہ معلوم اور پہلے ایک مرتبہ ابھی جو وہاں کا ہوم منسٹر ہے رحمان ملک، اس کو کسی مجلس میں آصف علی زرداری نے کہا کہ بھائی مجلس کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں. قرآن سے کہا قلو اللہ احد پڑھا تو اس میں کئی غلطیاں آ رہا ہی نہیں اسے، قلو اللہ احد نہیں آ رہا، اور ایک اسلامی جمہوری ملک کا ہوم منسٹر ہے. سوچی کیا ہوم منسٹر ابھی بھی وہی ہوم منسٹر ہے. اس کے بعد الٹا بہانا تلاش کر رہا ہے. جب پوچھا گیا کسی نے میڈیا والوں نے پوچھا بعد میں کہ آپ ایک اسلامی جمہوری کے ایک ہوم منسٹر ہے، آپ کو اللہ پڑھنا نہیں آیا،
नहीं, वो जो कुरान मुझे दे दिए थे ना, वो कुरान में प्रिंटिंग मिस्टेक, भाई कुरान में प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे मतलब इतना याद नहीं है। कैसे मुसलमान हम लोग यहाँ बैठकर अंधा आदमी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, गलत है, गलत है, गद्दारी है मुल्क के साथ, जो भी कर रहे हैं गलत है। आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से फायदा उठा रहे हैं, यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ का ये दीन की बुनियाद पर नहीं है। हाँ, अगर इस्लाम और कुफर की जंग हो तब हम मुसलमान के साथ, इस्लाम के साथ, लेकिन ये मुल्क की बात है, और मुल्क के एतबार से ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं। वहाँ के जो पहली बात तो तकसीमी गलत, फिर उसके बाद वहाँ के जो लीडर है, उनके जो कायद आजम है ना, वो सबसे बेकार इंसान है। सबसे बेकार इंसान उसमें आप पाकिस्तान के बारे में डॉक्यूमेंटेशन था, वो आप देखो एकदम इंटरनली पाकिस्तान में जो भी चलता है, पॉलिटिक्स कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, एकदम अभी आप में से दिखता जैसा वो मुल्क बना, वो इस बुनियाद पे बना कि एक इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। आज तक उसका उसकी हवा भी नहीं है दिखता है। इंडिया ही बेहतर हो। कोई पूछे इसरार अहमद साहब से कि आपको पाकिस्तान बेहतर लगता है या इंडिया, तो बोले शायद वापस नहीं जाना, मैंने यू डोंट मी टू गो देयर सेफली बोल के, मैंने वहां गए तो आप कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन बोल दिए वो, इसी बात में सब समझ में आ गया। नहीं जाना चाहते दिखता है। आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, वो भी इस्लाम मुसलमान ही है, तो उसके साथ कोई दुश्मनी होगा पॉलिटिकल तो उसको डेथ सेंटेंस दे दे। बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है, वो और भी खराब है, दोनों और भी उससे भी बदतर है बांग्लादेश है ना, उससे भी बदतर है, क्योंकि हम लोग पड़ोस में है तो ये जो कोर्ट जो अभी डिक्लेयर की है फांसी की सजा, ये सिर्फ 2-3 महीने के अंदर बना के कोर्ट जजेस को सब तैयार करके, जजेस को अपॉइंट करके सजा सुनाई गई। तो बेकार हो रहे थे सेना। और जब से हम लोग जो है, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ वहाँ पर 2 ही औरत को देखता हूँ, खाली दर्जिया और यहाँ शेख हसीना। खाली दर्जिया मेरी उम्र का नहीं जानता, बेहतर है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ भी अच्छी दोस्ती कर ली, लेकिन शरीय एतबार से दोनों गलत है, क्योंकि औरत ऊंचे पोस्ट पर औरतों को हुक्मरानी नहीं दिया। छोटे पोस्ट पर रह सकती, छोटे मोटे पोस्ट हैं तो हाँ, उसमें हो सकता है। हंसी मजाक बन गया पाकिस्तान। यहाँ पे आर्मी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इतना अलग कर दिए इंडिया में कि आर्मी कितनी भी स्ट्रांग हो, कभी भी पॉलिटिकल में इंटरफियर नहीं कर सकती। वहाँ पे तो इतना हालत खराब है, ये इसको मार के आता, फिर वो उसको मार के आता। नहीं, लोग बाहर देख के हंसते होंगे, नहीं हो सकता। साजिश भी है, और साजिश में हम लोग पूरी तरह से साजिश की जरूरत ही नहीं, हम लोगों को ऑलरेडी रेडी हैं। लेकिन सबक वाली बात आपको हाँ देखें, बगैर देखे लिखना, हाँ बगैर देखे, अभी यहाँ लिखना, बगैर देखे लिखा। सबसे पहले अभी सुना दीजिए एक तरफ से। बहा बहु लिखा बहु बतु उठी तुझी सजो किदा किरा पुरी करू पशु खतु कुती कितु पियो पियो या पिया सिहा सिहा सा बोले सा सिहा 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 सहु सुगी मुती मुती कितु खता यजा यदा यजा युजु युति विदु मुदी मता मता जा
ये शेख इसको कहते हैं खियू। खियू जियू जियू खियू लिजू लिदू लिजू लुजी लजा लिजा 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 है इसको जेड बोलिए। लिजा निसा नुसी नसू नुजू सजू सजू सिजा सुजी हुई हिवू हवा तखी तिखू तखा तखा तिखू तुखी दुरी तुरी तुरी सुखी सुखा सुखा सखी सिखू ज़ीखू ज़खा रखी ज़खी दुखा जरा प्रैक्टिस में करना है तो जरा खींचना भी नहीं और थोड़ा रा और दो दा फी दा दा और फू दो अफा गना गिनु गुनी शुई शिया शऊ जहू दिहा दुही हुमी हिमू हमा कला 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 क कला क कला ये एक होता का और एक क खा क इसको खा भी नहीं बोलना है और का भी नहीं बोलना है क हाँ, अंदर क कला। कला कला किलू कुली कुफी कितु किमु किना कुली किलू कला का कियाऊ किऊ किऊ लिऊ लई ला अली इला उबा लिबू बबी बसी तिसु जुसा हती। जी फरमाइए। मतलब जो मैं ये पेपर में लिखा हूँ ना, हाँ जी, वो किताब से कुछ नहीं, किताब से बस थोड़ा हेल्प ले लेना है। असल जो पढ़ाना है वो तो मैं अपने एतबार से पूरा तैयार किया था, पूरे के पूरे पढ़ाना भी ज़रूरी नहीं है। शुरू में जैसा दीन नसीहा है, दीन नसीहत है, नसीहत मतलब खैर खाई का क्या मतलब है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना, खैर खाई करना है, ये सब बातें तो मुख्तसर उनको ज़रा समझाना। ये ताप नहीं, हदीस लिखा नहीं, याद करने जरूरत नहीं, वो हदीस में आ जाएगा, तो हदीस अलग से है ना। हाँ, हदीस लिखाने की जरूरत नहीं है, बस सुना दीजिए उनको, याद रखें। हाँ, उसमें कुछ अखलाक आदाब की बातें हैं, उसमें हाँ, उसमें से जो पेपर में से कुछ अखलाक आदाब, हाँ हाँ वही खाने पीने के आदाब है। हाँ 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 बेहतर है। आदाब और अखलाक के लिए ही उसको दिया हूँ, बाकी जो वाक़यात वगैरह वही कर लीजिए, क्योंकि वो एक पीरियड में आदाब वाक़यात और अखलाक भी लिखा है ना, तो आदाब अखलाक के लिए सीरत में क्या है। नहीं नहीं नहीं, उससे भी मुख्तसर एक किताब मेरे पास से क्वेश्चन आंसर की शक्ल में बच्चों को देना है। जैसे हमारे सोशल कौन है, उनका नाम क्या है, उनका और क्या है, कब पैदा हुआ, सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर की शक्ल में एक 10, 20, 25 सवाल तुमको तफसीलात। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। वो जैसे हदीस में उनको हदीस लिखा दे रहा हूँ, वो है जबानी, हाँ क्लास में ही याद हो जाना। हाँ, क्योंकि ये जो हमारे 4 हफ्ते का कोर्स है, इनको होमवर्क देके भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्लास में ही याद कराता हूँ, जो भी हो इसलिए मुख्तसर होना चाहिए, क्लास में याद हो जाना। वो तो मुझे पता नहीं है,
रिटर्न करो। हाँ ले सकते, कोई भी ले सकते। अच्छे उस्ताद से कल बात करते हैं क्लास में। पितु सुत शति पित सुत आयस। अब देखिए सा और सीन और सा दोनों का सेम साउंड तो नहीं होना चाहिए। सीन के लिए हाँ सु है, सुता है, उसके बाद शति है, फिर उसके बाद सीता। हाँ सी और सु, सीन और सा दोनों का लाइक कीजिए, इसी मकसद से इसको पढ़ा रहे हैं। हाँ रिसु कुसी पितु हाँ कुदी गिब हुआ हिमु महु तिहा। हाँ नहीं हति लितु लाहि आहा लियो कियू कियो याकु। नहीं, पहले ता है, उसके बाद या है, तिया। कियो के बाद याकु याकु हाँ इसको याकु सीता तिया। तिया नायु। और ये नहीं किया पिया पिया लियू लियो लिया या 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 कावा कवा कावा कावा कुली इको लाको इयो किवा। हाँ बस नेक्स्ट पढ़ी। अब थोड़ा ये पूरा पेज शुरू से थोड़ा रिवाइज कीजिए, अभी बैठ कर शुरू से, ताकि ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। हाँ पढ़िए आप। सुबु हाथी स्थिति हाँ जजा जैसा जैसा लिदु लदु नहीं लिदू अब्बा किसी तीसी। किसी आपको लास्ट पेज में आइए, पीछे आइए थोड़ा पीछे। हाँ सर देखिए यहाँ ना बी बाबू है, बी बाबू है ना, वो प्रैक्टिस कीजिए। बी बाबू ऐसे पढ़ना, बी बाबू, बाजर बी बापेश भू बाजर ऐसा नहीं पढ़ना, बी बाबू। शेख अभी पर वो ये बता देते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसमें सिर्फ जो है यही है जी सा का मसला है जी। ये तो उर्दू है। सा 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 हाँ सा बोलना है। और ये जेड है जाब के अलावा दाल, और दाल के बाद दाल हुआ, क्या उसको क्या बोलते हैं ना? जाल दाल नहीं दाल, जैसे सा बोले हम सा, वहीं से दाल 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 सा सा दाल। और ये दो, ये तीनों एक ही जगह से, और दो की तकरीबन दो, ये दो और ये दा, दो एक गोल है और ये गोल नहीं, बस एक ही जगह से दो। हाँ दो के बाद दो। अच्छा, लेकिन अगर दाल जाल जेर आ जाए और सा जेर आ जाए हाँ और ई आए तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही आएगा। नहीं कोई एग्जांपल? दोनों को जेर आए, दोनों को जेर आए किसी और वर्ड के साथ। कैसे? सीजी 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 हाँ सीजी। जाल और ई के साथ ये तो वी है, जैसे जाल या वी। हाँ अगर पेश सी ज़ू, सी
नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा वर्ड वही कॉमन रख के अगर सिर्फ खाली सा और जाल चेंज हो तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा? नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा। तो आगे इसमें आएगा जी। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर बार पेज जैसे शायद पढ़े होंगे, इसलिए तो रवानी से पढ़ना। जी आप बोलो। सुबु, सुबु, जैसा, जीवु, लीगु, अबा, देसी, जुजु, दजा, जा दजा, हाँ, दजा, देसी, रावा, सुमु, लीगु, हाँ, नेक्स्ट दुनु, वला, दीदी, उदु, वाआ, लुगु, वला, मुदी, लऊ, मीदु, मुवी, लावा, तिहा, यहा, मीदा, तुवी, स्लीसा, नेक्स्ट फाऊ, अच्छा यहाँ तक 2 लेटर्स हो गए, इसके बाद 3 लेटर्स आ रहे हैं, उसको ऐसे पढ़ना, फा आला ऐसे खींचना नहीं, और फा जोर फा इन ज़बर आला हम ज़बर ला फा आला, ये भी गलत, इसके एक ही साथ पढ़ना फा आला। इसलिए मैं कहती ये जो कायदा है ना, अब देखिए दूसरे जितने कायदे हैं, और है इसका कायदा बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है। अब आपके पास जो है ना वो देखा मैं, इसके अलावा ये जो किताब है ये शुरू होती है, देखिए दूसरे जितनी किताबें अलिफ बा ता सा पहले बाय ऑर्डर पढ़ाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। पहले जो शुरू हो रहा देखिए अलिफ बा अलिफ बा, ऐसे उसके बा ता फिर ता ऐसे करते करते बाय ऑर्डर है वो, लेकिन देखिए पहले 2 लाइन में सिर्फ पहले 1 लाइन में अलिफ और बा की प्रैक्टिस है। पहले 1 लाइन में अलिफ बा के अलावा तीसरा नहीं है। सेकेंड लाइन में जब बच्चा आएगा तो उसमें ता का एक्स्ट्रा इजाफा देखिए, और ता के साथ अलिफ बा भी है। थर्ड लाइन में जब बच्चा आएगा तो सा एक का इजाफा, लेकिन फिर अलिफ भी है उसमें, अलिफ बा ता सा कितना हुआ। फिर उसके बाद जब फोर्थ लाइन आएगा जीम का एक एक करके इजाफा करते हैं, यानी पूरे रिवीजन भी होता है और बच्चा ये भी सोचता है कि मेरा सबक आगे बढ़ रहा है। ये एक लाइन पढ़ने पर उसको एक ही लेटर याद होता, नया एक ही आता, और उसकी हिम्मत भी आती, हाँ बच्चा मुझे रोजाना सबक मिल रहा है। दूसरी जगह पर ये बात नहीं है, और यहाँ पर वो याद नहीं कर सकता क्योंकि कितना याद करेगा ये। और दूसरे से वाली बात आता जिम हाँ था, पूरे याद करके सुना देते हैं, कौन सा जिम है लेकिन उसको याद है पूरा, ऐसा होता है। तो ये पूरा होने के बाद लास्ट में आता है एक एक लफ्ज के लिए, एक एक लेटर के लिए एक लाइन है, फिर रिवीजन पीछे से होने के बाद। अब देखिए एक जगह पर दिखाता हूं आपको रिवीजन कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाइए, यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट पेज में 2 3 4 चौथी लाइन के बाद देखिए अलिफ बा ता सा जीम हा फा दाल ताल रॉ, तरतीब से दिया देखिए। उससे पहले जा नहीं है, उसके बाद जा ऐड कर रहा है देखिए। जा होते ही जा, उसके बाद सीन शीन सॉ दाद की प्रैक्टिस होने के बाद फिर तरतीब से देता है। यहाँ पर अलिफ बा ता सा जीम हा फा दाल दाल रॉ दा सीन शीन सॉ दाद तो जा तक हुआ, तो बच्चा नहीं पढ़ा अभी तक। फिर तौज़ा का इजाफा करते हुए फिर रिवाइज करती है, बेहतरीन किताब है। तो उसके बाद हाँ कुछ लोग इसको रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि बीच में एक दो क्या है उर्दू के कुछ सेंटेंसेस है, तो उसमें मखमल संदल ये सब संदल, तो क्या हुआ भाई, संदल थोड़ी जाकर हम पूजा करने जा रहे हैं, वो सिखाने के लिए बच्चों को, क्योंकि उर्दू के अल्फाज है ना, तो अरबी इसमें देते हैं तो उनको ईजी होता। पूरा होने के बाद लास्ट में देता देखिए अलिफ बा ता सा बाय ऑर्डर देता। यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे को, अब जाके तो बगैर देखे सुनाना, याद करते बैठना, क्योंकि आप तो शनाख्त हो गए ना, अब बाय हार्ट करे कोई हर्ज नहीं। ये होने के बाद आप देखिए ज्वाइन लेना शुरू हो रहा है, जीम
दो जिम लिखे देखिए, है ना, एक जिम फुल जिम है और ये हाफ जिम, यानी बच्चे को बताना जब जिम को किसी और से ऐड किया जाता है तो ये जिम ऐसा हाफ हो जाता है। ये किताब वाले ने काफी मेहनत की है, ये हमको समझना है। तो ये दो लेटर शुरू होता है ज्वाइन, दो के बाद जब फिर तीन देखिए, जेर जबर नहीं, सिर्फ जो है उसके ज्वाइन कैसे होता है ऐसे पढ़ना, जिम बा जिम ता ऐसे पढ़ना। सब होने के बाद पेज नंबर 8 में देखिए, पेज नंबर 8 में पूरे नुक्ते की पहचान है। ये यहां से यहां तक अगर कोई सही पढ़ दे पूरे हरूफ की शनाख्त उसको आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई सही पढ़े तो ये पेज नंबर 8 में है ना। अच्छा हाँ, पूरे नुक्ते और ज्वाइन लेटर देखिए कैसे ज्वाइन किए, वही ये कैसा ऐसे पढ़ना है, बा नून बा ता, बा नून, वही ऊपर नीचे नुक्ता, बच्चा फर्क कर रहा नहीं कर रहा, ऊपर हो तो नून, नीचे हो तो बा, ऊपर 2 डॉट हो तो ता, नीचे 2 हो तो या, ऊपर 3 हो तो सा, ये फर्क और ज्वाइन पूरा ज्वाइन होकर आता है। इतना कहीं से अगर बच्चा पढ़ दे तो हुरूफ की शनाख्त ज्वाइन होकर उसका आ गया। इसको कैसा पढ़ेंगे, हमजा हमजा ही पढ़ना। उसके बाद देखिए अब जबर जेर दूसरे तमाम किताबों में शुरू होता है बा ज़बर बा, अलिफ ज़बर आ, लेकिन ये जेर से शुरू करते हैं, क्यों मालूम? अब जो है मिसाल के तौर पर अगर बा लिखो उसको बा ही क्यों बोलेंगे हम, बे क्यों नहीं बोलते? नहीं, वैसे ही जेर नहीं है, वो बा ही है, बा ही है, जबर नहीं आया तो इसको, जबर नहीं आया तो, अच्छा जबर ना आए तो उसको खींच के बना, बा जबर आया तो नहीं आया, नहीं आया, सिर्फ बा लेटर है तो बा है, ता जबर है तो बा, अच्छा ता। तो ये पहले है, मिसाल के तौर पर ये बा है ना, जी उसके ऊपर जबर भी दे दिए, शुरू में ही जबर दिए, वो भी बा है, तो बच्चा सोचेगा पहले भी बा था अब भी बा है, क्या फर्क है? इसीलिए पहले जबर नहीं देते हो, सबसे पहले जेर देते हैं। पहले देखो भाई ये बा था, अब उसके नीचे एक साइन आ गई है, तब उसको बी बोलना, अब वो समझ जाता हाँ बी है, ये सी है, ये ही है, ये खी है, ये जी है, बोलने के बाद अब लास्ट में आता है, उसके बाद जबर आता है। देखिए अब उसको कंफ्यूज नहीं होगा, हाँ वहाँ जेर था तो बी हुआ, अब जबर है तो बा होता है। उसके बाद पेश देते हैं, सब एक साथ देने के बाद अब अलग अलग देखिए, सिर्फ एक लेटर की प्रैक्टिस, बा बी बू ऐसे पढ़ाना, बा बी बू। तो बच्चा जब भी बा के ऊपर जबर देखेगा वो बा ही बोलेगा, बा जबर बा पर हिजे करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 2 लेटर शुरू हो रहा है, तो यहीं से क्योंकि हरूफ की शनाख्त आप लोग का है इसलिए मैं यहाँ से शुरू किया। अब इसकी खूबी जब पढ़ते रहेंगे, मैं जब नया लेसन शुरू होगा तो आपको बताते जाऊंगा कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है और कितना फायदेमंद है। ये हो गया। अब उर्दू के लिए लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे। अब नेक्स्ट एक पेज जो है वो 3 लेटर का है ना, वो प्रैक्टिस करके आइए। फ़अला, फ़िइली, फ़ुलू ऐसे पढ़ना, खींचना नहीं और एक ही साथ बोलना। उर्दू निकाली क्या है? उर्दू के जो एक्स्ट्रा लेटर थे वो याद कर लेने की। एक्स्ट्रा जो लेटर है इसको टा है, पा है और इसी तरह से दाल है, रा है, चीम है, गाफ है। अब मैं दिखाने का तरीका आपको बताता हूँ। पेज नंबर 4 में देखिए बा, और ये कायदा भी मुझे बहुत पसंद है, इसकी खूबी मैं आपको बता देता हूँ क्या खूबी है। सबसे पहले क्या करते हैं, बा को लेते हैं, अलिफ को ज्वाइन करना बहुत ईजी है, मसला नहीं है, इसलिए अलिफ को छोड़ देते हैं और अलिफ भी लाते हैं पहले वो बा, देखिए सबसे पहले है बा को। अब इसमें 28 है लेटर्स उर्दू में, तो बा को 28 लेटर्स के साथ जब हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो कैसे होता है। सबसे पहले बा को लेकर देखिए, बा को अलिफ से के साथ मिलाना तो बा, बा को बा के साथ मिलाना हो तो बा बा, देखिए कैसा अलिफ के बाद बा है, उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन समझ में आता पा है। हाँ है। अब ये भी जबरदस्त पेश तीनों के साथ दे रहा है बच्चों को समझाने के लिए। देखिए बा, बब, बिब, बुब। और उर्दू में याद रखना आखिरी लेटर हमेशा जज़म,
उर्दू में आखिरी लेटर पर हमेशा जजम ही है, जो भी लफ्ज है। मिला के पढ़ना। हाँ, जैसे जीम रा मीम तो बोलेंगे जुर्म, आखिरी लेटर पर हमेशा जजम। उर्दू को पढ़ने का तरीका यही है, अरबी में नहीं। तो अब देखिए, बा को जब बा से मिलाए तो पहला बा छोटा हुआ और दूसरा बा बड़ा है, और ये दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए। देखिए, ये बा और ये बा दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए। आप अगर पहले को ऐसा करके ऐसा कर दिए, नहीं, सही नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा नीचे कर दिए, उसको ऊपर कर दिए, इसको ऊपर करके इसको ऐसे कर दिए, बा नहीं होगा। मतलब आप कुछ ज्वाइन तो किए दोनों बा को, लेकिन लिखने का ये तरीका नहीं है। तो आप इस बात का ख्याल रखें। देखिए, बा बब बिब बुब, अलिफ बा के बाद क्या आता है? पा। अब देखिए, बा को पा के साथ मिलाना तो सेम, कोई मसला नहीं। टिंग डॉट, बब बिब बुब, पा के बाद क्या था? ता, है ना? बा को ता के साथ मिला रहे। मतलब बा को लेकर सब लेटर को उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ता के बाद टा, ता के बाद क्या था? टा, कोई मसला नहीं है, वैसे ही। हाँ देखिए, ये दोनों लेकिन एक ही लाइन में आना चाहिए, आगे पीछे ना। बट बिट गुट, कैसे पढ़ना है? बट बिट गुट। टा के बाद है सा, तो बस बिस। उर्दू में तजवीज नहीं है, उर्दू में बस बिस बिस बोले, इसलिए हम लोग बच्चों को इसके साथ साथ ये नहीं पढ़ाते। तजवीज नहीं है बोले तो वो ये प्रोनाउंसिएशन। हाँ, प्रोनाउंसिएशन इसमें सब सा ही, सा सा, अच्छा, सब जा जा जा। अभी पढ़ाएंगे तो बच्चा गड़बड़ करेगा। अभी हजरत बोले सा है, अब फिर इसमें बोल रहा है कि सा है। इसीलिए पूरा ये कायदा खत्म करने के बाद जब कुरान नाज़िला पढ़ते हैं तब ये पढ़ाते हैं। अब उनको बता सकते हैं, थोड़ा समझदार हो जाते हैं कि उसमें ऐसा है, और उसके बाद आदि हो जाते पढ़ते हुए। अब उसके बाद देखिए, बा को जीम के साथ मिलाना है। बा को जब जीम के साथ मिलाएंगे, ये है बा और ये है जीम, है ना? जो दोनों को जब मिलाएंगे, ये लिखने का तरीका जरा गौर से देखिए, एकदम उल्टा हो जाता है। बा को ऐसे लकीर खींचना, उसके बाद यहाँ जीम बनाना। ये बा है और ये जीम है। कैसे लिखना है इसको? बा और ये जीम। ये जिम के नुक्ता कभी नीचे भी देते, तो जिम का ही समझ लेना, नीचे का तो नीचे नीचे मुझे लिखते हैं ना, मीम जीम हा या। तो ये जो जिम का नुक्ता यहाँ नहीं देते, यहाँ देते। तो ये नुक्ता समझ लेना, उसी का है मुझे। लिखने का एक अलग अंदाज। हाँ, तो बा के साथ ये जीम जो है, आप इसको गौर से देखिए। बा जीम आ गया तो कोई मसला नहीं, जीम खा हा सब उसी तरह ही, वही शेप। अब वो पूरे खा वहां तक चलेगा। तो उसके बाद देखिए, इतना होने के बाद क्या आ रहा? दाल। बा को हर एक लेटर के साथ ज्वाइन कर रहा है। बा के बाद दाल कैसे मिलाएंगे? देखिए, और इसको लिखना है बा के साथ दाल। बा छोटा सा लिखना, थोड़ा ऊपर ले जाके नीचे लाना। बा, आप लोग भी प्रैक्टिस करें। तो ये प्रिंट में तो जरा नीचे ज्यादा हाँ, थोड़ा नीचे पढ़ाता है। मैं ज्यादा नीचे नहीं कर रहा हूँ तो रा का शुभ हो जाएगा आप इसके लिए, क्योंकि बा रा देखिए, बा रा लिखने के लिए ऐसा कीजिए, ऐसा ले जाके ऐसा लाइए। ये बा हुआ छोटा छोटा सा सुलरा, बा रा। क्योंकि अरबी में हमको थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ। हाँ, ये मैं महसूस के इसीलिए शुरू किया ये, क्योंकि वो अब सब ड्राइंग चल रही है। अब हकीकत में जब हमको आगे तक जाना है तो क्यों एक दो दिन महीने के अवस्था में उतना ही करें, ताकि एक नक्श बाकी ना रहे। शुरू से हम सब साथ लेकर चले, अगर जो थोड़ा जरा आसानी से जाएंगे और जो है स्लो ही जाएंगे, लेकिन ये बहुत अहम है। तो बार आ देखिए, ऐसे लिखना है। रा आ जाए तो जा भी हो जाएगा, शा भी हो जाएगा, सेम शेप है। उसके बाद आ रहा देखिए, बा के साथ सीन को मिलाना।
बा, ये बा है, ये बा की एक जगह है, तीन के तीन दांत है, तीन आना चाहिए। ये मैं जो लिखा हूं थोड़ा सा ये देखिए, उसको जरा सीधा लिखना है, ये बस ये है ना, ये एक ही लाइन में आना चाहिए बस, वही शीन हो जाएगा ऊपर। बा के साथ स्वाद, इसको और जरा गौर से देखिए, बा स्वाद, ये बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत अफसोस होता है स्कूलों में, जो उर्दू मीडियम की स्कूल है ना, उनको मालूम नहीं है, बच्चों को ये सिखाते नहीं है। बच्चे वो जैसे चाहे उसे सीख लिए। जो उर्दू मीडियम में अच्छे से अच्छे वो PhD भी कर ले रहा है, उनको सही तरह से लिखना सुना बेकार लिखते हैं, क्योंकि ये लिखने का तरीका वो सिखाते नहीं। और ये जो मदारिस में क्या होता है, बाकायदा सिखाया जाता है, राइटिंग के एक पीरियड होती है, पहली क्लासों में राइटिंग के बाकायदा पीरियड होती है, उनको सिखाते हैं जैसे लिखना। ये सिर्फ अच्छा मदारिस में मैंने तो ये जो आलिम की कोर्स, हाँ आलिम कोर्स, अभी इनको भी सिखाना चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से है, केयर नहीं करते, वहाँ जाने वाले पेरेंट्स उतने ये नहीं हसास नहीं है। ये जो हाफिज कोर्स करते हैं उनको भी ये सब सिखाया जाता है। हाफिजों को सब याद कराने सिखाते हैं, बात जगह पर थोड़ा बहुत वो भी सिखाते हैं लिखने का, वो ज्यादा याद पे। तो ये बा और स्वाद, इसको जरा और देखिए, बा स्वाद, एक के साथ उसको ज्वाइन करना, बा स्वाद। अभी आप चीजें लगेगा, लेकिन लिख प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको मिटाइए मत, बात तो देख लीजिए कल तक भी। इसके बाद बा के साथ तो कोई मसला नहीं, घुमा हुआ ऐसे लिखना, बा घुमाया ना, अब इसको नीचे खींचेंगे तो स्वाद हो जाएगा, ऊपर एक लकीर खींची तो हो गया। वो अगर नहीं मिला तो भी वो लकीर कोई बात नहीं मिले तो दो चलेगा। बा के साथ अब आइन है, ये अच्छा अच्छे लोगों को भी लिखना नहीं आता। बा आइन ये शेप है ना, लेकिन जब ज्वाइन होके आता है ना, उसकी शेप ये सब हो जाता है। यहां पर इसको घुमाना पड़ता है। कैसे घुमाना उसको देखिए, आप तो स्कूलों में या औरतें क्या कैसे लिखते हैं वो भी दिखा देते हैं। ऐसे लाते हैं इसको, जैसे ले जाके ऐसे ही सिखाया, नहीं सिखाते हैं, लेकिन हकीकी माने में देखिए कि हा का शुबा हो जाता है, बा ऐसे ले जाना और उसको ऐसे ही वापस लाना थोड़ा नीचे से, तब जाकर हकीकी शेप इसमें जो है ना वो बनेगा। ऐसे जाके बा ऐसे ले जाना, थोड़ा नीचे से उसको वापस लाइए। अगर ज्वाइन भी ना हो, थोड़ा गैप के अंदर आए तो कोई मसला नहीं, जैसे थोड़ा गैप है देखिए अंदर, ऐसे भी करते हैं। आइन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद गाइन कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर नुक्ता दे दीजिए। बा के साथ फा, बा फा थोड़ा लंबा है, बा कॉफ, लेकिन उसके एक साथ ज्वाइन करने से। उसके बाद है बा काफ, पहले इतना बनाना, उसके बाद ये बनाना। हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे जो होते हैं यहाँ ले जाते हैं, फिर वापस लाकर फिर ऐसे जाते हैं। शेप तो बन गई है, लेकिन वक्त लगता है, गलत तरीका है। बा इतना ले जाके नीचे लाइए, उसके बाद लकीर खींचिए, काफ की जो लकीर हो लास्ट में दो कर देंगे तो गाफ हो गया। बा लाम इजी है, बा यहां पर थोड़ा सा राउंड कीजिए। बा और मीम, मीम को देखिए, बा यहां पर मीम उल्टा लिखना, आप ऐसे घुमाएं। मीम जब सिंगल लिखेंगे तो ऐसे देखिए, ऐसे गया, और जब ज्वाइन करके लिखेंगे तो उल्टा। मीम पूरा आना है क्या नीचे तक? हाँ नीचे तक आना। बा नून है, उसके बाद ये देखिए बा हा, उसके बाद देखिए बा हा, थोड़ा सा खींचे नहीं, ये हा है, ये नीचे थोड़ी लकीर आ जाए तो ये हा है। कौन सी हा? ये हा। तो ज्वाइन करके लिखेंगे तो ऐसा बा। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपको इजी हो जाएगा, ये बेस है। पूरे
हरफों के साथ शायद है। हाँ, बा के बाद अब जिम ले रहे, देखिए जिम को हर एक के साथ मिलाएंगे। फिर उसके बाद अब जिम मिला दिए तो चीम खा हा सब आ गया ना, इसलिए उतना छोड़ दिए। सीन में आ गया, देखिए अब सीन मिला देंगे तो सीन शीन दोनों हो गया। स्वाद मिला देते, स्वाद को लेने के बाद स्वाद दो तो भी हो गया, तो लेते, तो आ गया तो जौ भी आ गया। उसके बाद आइन लेते हैं, आइन हो तो गैन भी हो जाएगा। उसके बाद फा लेते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं बनाए वो लोग, काफी सोच के करके बनाए हैं। अब पढ़ाने वाले पर डिपेंड है ये सब चीजें। फा लिए, काफ लिए, उसके बाद देखिए अब काफ है तो गाफ भी आ जाएगा, लाम है, मीम है, उसके बाद हा, तो अलिफ वाव के साथ देख रहे हैं अलिफ। उसके बाद देखिए लास्ट में ई और ये, लास्ट में ये और ई, गोलिया और लंबी या। मीम की बात क्या है शेख? मीम के बाद हा है ये। हाँ हाँ, ये हा के खास शेप है, ये उर्दू में ही है ये जो हा है, नीचे थोड़ा ऐसा कर देने से हा हो जाता है। हा, हस हिस हुस, हज हिज हुज, हद हिज हुज। ये नहीं देखे थे हम लोग। हाँ, अब यहाँ तक देखिए लिखना इंशाल्लाह यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद अब सेंटेंस आता पढ़ने के लिए, अरब, दिल दे, छोटे छोटे सेंटेंस। लेकिन उर्दू में भी जेर जबर नहीं यूज कर रहे हैं, तो और हमको वो जाना बोले तो और थोड़ा तो क्या अपनी जबान है ना, तो खुद पढ़ते पढ़ते आ यहाँ तक तो हो गया। थोड़ा सा 5 मिनट में इसकी रिवीजन कर देते हैं। तो मैंने कल आप जो लोगों को फोन किया था, मकसद यही था कि तो बिजी है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्लासेस मिस हो जा रही इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही जिसकी वजह से पीछे हो जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए मैं कॉल करके आपको मालूम किया क्या है रीज़न क्या है। मसरूफियत है वो तो हो सकता है कि क्योंकि टाइम ऐसा है, इसमें कुछ भी काम आ सकता है। लेकिन कोई भी क्लास अगर मिस हो जाए, रिकॉर्डिंग तो अलहमदुलिल्लाह हो रही है, उसके ज़रिए से अगर ना भी हो तो कम से कम साथियों से जितना हो सके उसकी वजह से पीछे आ जाए तो और पीछे हो जाएंगे। देखो थर्सडे की क्लास आप थोड़ा हाँ ले लेंगे तो अच्छा, हम लोग बहुत सारा आदमी हैं। तो थर्सडे में हम लोग रिकॉर्डिंग भी शायद। हाँ ठीक, कि नई चीज़ पढ़े थे वो है हरूफ जार्रा। हरूफ जार्रा, वैसे पहले एक लिस्ट आपको लिखाया था और कहा था कि एक पेज छोड़ देना जी। तो जो पेज छोड़ना है वहां पर आपको लिखना है, अरबी जबान में बाज हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले इस्म को जर देते हैं। अरबी जबान में बाज हरूफ लेटर्स, अरबी जबान में बाज हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले को जर देते हैं। अरबी जबान में बाज हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले को जर देते हैं। लिखे हैं हाँ, खाली जगह है, वो लिखे हैं, हाँ। खाली पेज। जो लोग नहीं लिखे लिख लीजिए। ये अल्फाज है, हुरूफ बोला सो। हाँ, वो एक पेज छोड़ने के लिए बोला था, अभी एक पेज छोड़ेंगे। है ना, बाजू बाजू में कहा है खाली नहीं लिख लीजिए, वो अलग है। वो अलग है। हाँ, वो भी जर देते हैं लेकिन वो अल्फाज हैं और ये हरूफ हैं। अभी जबान में बाज हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले को जर देते हैं। उनमें से हम सिर्फ 2 पढ़े हैं, सी और अला, है ना। और ये कुल 17 है। हाँ, ये कुल 17 है। तो आपको मेन हेडिंग में लिखना है, अरबी जबान में बाज अल्फाज बाज हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले को जर देते हैं। यानी ये आ जाए तो बाद वाले को जर ही दिया जाएगा, यानी जेर के साथ पढ़ा जाएगा 17। और ये कुल 17 हैं। क्या लिखना है, अरबी जबान में बाज हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले इस्म को जर देते हैं। लिख लीजिए, इनके पास लिखे हुए नहीं है। अरबी जुबान में एक है और एक लिखा था मैं, अरबी जबान में बाज अल्फाज ऐसे हैं जो बाद वाले को जर देते हैं, ये हरूफ है। वो अलग है। अच्छा, हूबहू कॉपी करना, लेकिन अरबी जबान में बाज हरूफ ऐसे हैं लिखना है। हाँ, क्योंकि वो है अल्फाज और ये है लेटर, वो वर्ड है और ये लेटर है। अपने दूसरी ओर कहा था कि और इस पे छोड़ दीजिए। अच्छा,
तो वो जो पेज छोड़ दिए है ना वहाँ लिखिए। 17 वाला जो है लेटर है ना, हाँ 17 वाले लेटर है। सब लिखा है। आप शायद हर जगह आए थे क्या? जी, जी। हाँ हर जगह मुझे तो सूफी जो है हालात हाँ तो उसमें से 4 शायद लिखा था, दो ही हुई है। हाँ। तो उसमें से पहला पढ़े थे हम लोग फी, और ये कुल 17 है। और दूसरा पढ़े थे आला। उसको ऐसे ही लिखना, जो कॉपी बनाकर ये है हुरूफ बोल के लिखना है। हाँ हुरूफ। हाँ और यह 2 हुरूफ है, लेकिन आप जो दूसरे लैंग्वेज के एतबार से कह रहे हैं, अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में हर्फ उसको कहा जाता है, एक तो लेटर है उसको भी हर्फ कहा जाता है, अलिफ बा ता सा ये भी है, उसको हर्फ तहज्जी बोलते हैं। और एक हर्फ होता है फेल, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म का मतलब हुआ नाउन, फेल का मतलब तो और वर्ब, और हर्फ का मतलब हुआ जो खुद ब खुद अपना माना नहीं बताता है। अगर आपने सिर्फ यही कहा कि फी अंदर, आला ऊपर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मतलब ये इससे पहले जो हमने अल्फाज पढ़े उसमें भी वो माँ साथ, हाँ वो भी क्या माना? साथ है, लेकिन उसका क्या है, ये माँ है, तो अरबी लैंग्वेज के एतबार से ये एक हर्फ नहीं है, ये एक हर्फ नहीं है। ये क्या है, माँ, ये इसके पूरे एनालिसिस करेंगे तो ये एक ज़र्फ है। ज़र्फ मतलब मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। तो साथ का मतलब हुआ वहां पर और एक चीज पोशीदा है, अंडरस्टूड है, और एक चीज अंडरस्टूड है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये हर्फ नहीं है, ये पूरी तरह से अपना माना बता, एक इस्म है, ये इस्म है साथ। समझ में आएगा कि हाँ ये साथ है। और आपने कहा किताब, एक किताब यानी मुकम्मल तरीके से एक माना वो बता देता है। और हर्फ में क्या होता है, ये किसी और का मोहताज होता है, किसी और के मोहताज हुए बगैर वो अपना माना बता नहीं सकता है। सिर्फ फी कहा जाए तो बात समझ में नहीं आती। हाँ, जैसे इंग्लिश में उसके थोड़ा सा ये प्रिपोजिशन है। तो ये है फी और अला, उनमें से 17 में से 2 है। फी के माने अंदर में और अला के माने ऊपर। ये जिस पर भी आज आपको कैसे लिखना है, पहले खाना बनाना, उसमें लिखना है हुरूफ जारा, जार देने वाले हुरूफ, हुरूफ जारा। उसके बाद लिखना है कि मानी, उनके माने क्या है, और यहाँ लिखना है कि मिसाल। इससे पहले जैसे लिखा ना वो बहु इसी शेप में बनाना। फी के माने में, अंदर, इंग्लिश में कहेंगे तो इन। अला के माने ऊपर, ऑन। फिल मस्जिदी, अलल मस्तबी। फिर आ गया तो क्या पढ़ेंगे, अल मस्जिद को मस्जिदी बोलेंगे। अल मस्तबू से पहले अला आ गया तो बाद वाले इस्म को क्या करेगा, जर देगा, अलल मस्तबी। तो जहां भी फी आ गया, अला आ गया, उसके बाद वाले को जर ही देना। और जर सिर्फ आखिरी लेटर को, ये तो हुआ हो रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अरबी जबान में जो ग्रामर है जबर जेर पेश, वो सिर्फ आखिरी लेटर के लिए, आखिरी लेटर को क्या देना है। ये एक पढ़े थे हम लोग थर्सडे को। उसके बाद नई चीज शुरू हो रही है, वो है प्रोनाउन। वो और इसी तरह से तुम और मैं अरबी में बोलेंगे कैसे, नेक्स्ट क्लास में देखना चाहिए। हकीकत में आज कोई नई चीज नहीं पढ़ाया, थर्सडे की रिवीजन हुआ। कल इंशाल्लाह आप दिन शुरू करेंगे। नोटबुक लेके हाँ, उसके लिए अलग से एक डायरी रखेंगे, एक मजबूत तो बेहतर है। ये हाथ में और दोस्तों को लेके
और एक नई क्लास है, तो जो लोग अरबी ज्वाइन करना चाहते कम से कम वो एक दिन, वो सबसे आम है, कहते कि इसमें इंशाल्लाह ज़्यादा मालूमात आप हासिल हो सकती है उम्मीद है अल्लाह ताला से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या और भी इश्तिहार करना चाहते हैं, आप एक हफ्ता और लेट करना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो कुछ लोगों को जमा करेंगे ताकि मिस ना हो क्लासेस। इंशाल्लाह है सबको हमें पूरा आ रहे हैं अकीदे के लिए वो पहले एक्स्ट्रा नोटबुक लेके आइए सेपरेट। ओके, और बीच में कोई आए तो भी रिकॉर्डिंग कीजिए। शुरू करते हैं इंशाल्लाह कल शुरू करते हैं।